हाँ जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम फिलहाल आपने ट्यून इन कर लिया है। एंड आप सुन रहे हो भोपाल की सबसे बड़ी वेली निशी को, जो कि 12 से 3 आती है और जमाती है वेलापंथी का अड्डा। तो भाई साहब आज है दिन सैटरडे का, एंड आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब सैटरडे को तो निशी के साथ कोई ना कोई वेलापंथी करने के लिए आता है, या तो स्टूडियो है या तो टेलीफोन लाइन से जुड़े। तो मैं बता दूं आज निशी के साथ वेलापंथी करने के लिए आए नहीं है, टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं स्वयं श्री 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 हरिहरन सर, हु इज इंडियन प्लेबैक सिंगर, भजन सिंगर एंड गजल सिंगर। साथ में हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विक्रम घोष सर। हेलो सर। हाय निशी, हाउ आर यू? सर आई एम परफेक्टली फाइन। एंड जब आपने हेलो बोला, मुझे ना एकदम कान में ऐसा हाथ लगाना पड़ा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। सर कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। सर सबसे पहले तो भोपाल की जनता इज सेइंग अ बिग हाय, एंड वो आपको बहुत बार लाइव सुन चुकी है। तो हमारा पहला सवाल ही हम भोपाल से जुड़ा हुआ रखते हैं। सर आप इतनी बार भोपाल आए, तो आपका एक्सपीरियंस भोपाल की जनता के साथ एंड भोपाल में कैसा रहा है? मैं भोपाल इज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी, क्योंकि ऐसे जब मैं गजल प्रोग्राम्स वहाँ करता हूँ, मेरे ख्याल से 8 या 10,000 लोग आते हैं सुनने। Yes. और ऐसे सुनते हैं कमाल। हाँ जी सर, यही तो बात है, भोपाल की जनता की प्यार देने में एंड खूबसूरती मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है हमारे सारे भोपाली। फिलहाल तो हरिहरन सर के साथ एंड विक्रम सर के साथ इस वेली निशी ने ढेर सारी बातें करी है। सुनाऊंगी ब्रेक के उस पर, आपने कहीं नहीं जाना है, निशी के साथ यहीं पर बने रहना है। दैट इज ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। अजनबी हम भी है, तुम भी हो, ये रातें भी हैं, जाने पहचाने से यूं लगते बातें क्यों है। अजनबी हम भी है, तुम भी हो, ये रातें भी हैं, जाने पहचाने से यूं लगते बातें क्यों है। हम तो नजरों के पलकों पे यूं घायल है, लब पे लफ्जों का ये पहरा क्यों है। ગુજરાતીમીડિયા.com સાથે આજે છે પંડિત હરિહરન અને પંડિત વિક્રમ ઘોષ, બહુ જ સરસ કલાકારો, અને એમની સાથે આજે વાત કરીશું એમના એક નવા વેન્ચર વિશે, પ્રેમના ગીતો પ્રેમની વાતો. Please tell us about this interesting venture that you decided to build, because I think एक पुराने फ्लेवर का जो एक संगीत था, वो आप इसके साथ हमारे पास वापस ला रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट विक्रम जी से हुआ, तो बताएं आप। हरि जी और मैंने एक एल्बम किया था 2.5 years back called Ishq, and Ishq did very well. We did that in the pandemic, and after the success of that album we were thinking कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए. How can we do something even more interesting? How can we utilize our chemistry, our kind of zone of sound? See, the idea is there's nothing that's old or new. Everything has been there. It's a matter of discovering and matter of how people perceive it. The idea with the kind of music that we are doing together is that it's definitely a big plus for good melody, a big plus for good lyrics, definitely and obviously great singing and some very good instrumentation, you know. तो क्या है कि we want to bring in the sounds of live instruments once more to the foreground, you know, Yes. which has kind of taken a backseat in recent years, that, you know, there's a lot of programming happening and less of live instrumentation. But with our work, we like to keep the live right up there in front, because all those musicians, fantastic artists, beautiful instruments, which are part and parcel of the Indian history, sound, psyche, what have you, you know. And we want to bring that into the foreground, and we both believe that with that kind of instrumentation, there are a lot of energies that come. Those great artists bring great energies, and that when it supplements a project, it straight away hits your heart. That's why a lot of people keep saying, you know, पुराने ज़माने के जो sound था, जो it's all about melody, lyrics and instrumentation. End of the day. क्या है कि ये सारी जब चीज़ें मिलती हैं, मन मर्जी has songs where there is, in Hindi you call it गूंज. गूंज, जी बिल्कुल सही. Gунj, vibration. It happens when you use real instruments, because that sound is not
squeezed. It's the way it sounds. should be. The natural sound, you know. Natural Pure resonance form, होता है. उसका And- प्योर फॉर्म होता है. Yeah. हाँ. And when the composition complements it, and the singer also complements it, that vibration becomes more and more. So this, like, Man Marzi is a chill pill. True. You just listen to it and you're on your voyage for the next 45 minutes. Wow. Yeah. Wow. So that's what has been created, and it goes to meaningful lyrics, beautiful composition, sounds, Ghana. It's just a total package, I would say. Thank you. Thank you. It was lovely talking to both of you. Thanks a lot. Thank you. Great very questions. much. We enjoyed the interview. Thank you. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. आज मेरा मूड आ रहा है कि हरकत लूं, तो हरकत ही हो गया गाना. कभी सीधा गाता हूँ तो कभी सीधा नहीं गाते हैं, यही शिकायत लोग नहीं करते हैं। सीधा गाता हूँ, बहुत सीधा गाता हूँ कभी कभी. अजनबी हम भी है तुम भी हो, ये रातें भी है, जाने पहचाने से यूं लगते बातें क्यों है. हम तो नजरों के पलकों पे यूं घायल है, लब पे लफ्जों का ये पहरा क्यों है. रात खुश चांद खुश मौसम खुशनुमा है, कर दो हाल दिल बयां सोचे क्यों है. हो रात खुश चांद खुश मौसम खुशनुमा है, कर दो हाल दिल बयां सोचे क्यों है. हेलो, मैं हूँ हरिहरन. नमस्कार, मैं हूँ विक्रम घोष और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं. एक एल्बम लेकर आ रहे हैं, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज कर रहे हैं. थैंक यू. धन्यवाद. हमारा एल्बम का नाम है मन मर्जीज. तो क्यों मन मरीज ने फिर हाँ, हम ला रहे हैं जो एल्बम, उसका नाम है मन मर्जी. तो मुझे बताइए कि ये नाम जो है ये क्यों रखा गया, इस एल्बम का नाम मन मर्जी? क्योंकि हमने जो मन में आया वैसे ही म्यूजिक बनाया. एक्चुअली कोई डिक्टेट दिमाग में नहीं था, कोई वो टेंशन नहीं था कि कैसे इसको बनाएं? बनाया जाए, यो आजकल ये चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे, वो सब कुछ नहीं. अपने दिमाग में जो आया, जो म्यूज़िक हमें पसंद है वो हमने बनाया. और वो म्यूज़िक जितने लोगों ने सुना है, अभी तो इट्स नॉट रिलीज्ड, सबको बहुत ही अच्छा लगा है. सो मन अगर साफ हो और उस मन से जो मर्जी है वो निकले तो शायद काम अच्छा होता है. और वो उसका है ना, ये सारे गाने जो हैं इसमें टेक्निकल है, गायकी है, सब है, मगर आप गुनगुना सकते हैं. इट इज़ वो एक इजी लिसनिंग है. इजी लिसनिंग है और बिल्कुल आप एक दो बार सुनेंगे आप गाने लगेंगे. से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं इस एल्बम के लिए. थैंक यू जी. थैंक यू. आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री के वो दो दिग्गज हैं जिनकी ख्याति, जिनका फेम सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में है. मैं बात कर रही हूँ 2 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर पद्मश्री हरिहरन जी की, वर्ल्ड रिनाउंड तबला मास्ट्रो एंड म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम घोष जी की. और ये दोनों अब एक बार फिर से जुगलबंदी कर रहे हैं अपनी एल्बम मन मर्जी के जरिए, जिसमें हम लोग फिर से म्यूजिक के दीवाने लोग बारिश में भीगने वाले हैं बेहतरीन म्यूजिक की. तो ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स इनसे हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हरिहरन जी, विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे. धन्यवाद. नाइस टू बी हियर. थैंक यू. The pleasure is all ours. So please tell me, what is मन मर्जी about? विक्रम जी, सबसे पहले आपसे पूछते हो. मन मर्जी is about
whatever Hariji and I felt like doing, मन मर्जी, अपना मन मर्जी. So ऐसा है कि we did our first album इश्क during the pandemic. Right. वो भी कुछ ऐसा ही था कि कुछ मन मर्जी था. We just started talking and then Hariji said send me the tracks. I had sent him some tracks before also. तो वो उस तरह से हुआ. लेकिन ये consciously मन मर्जी, मतलब Hariji was in my studio in Calcutta and we were mulling over कि किस तरह का हम काम करेंगे इस बार, since we've already done one album together. जैसे कि हरिजी को मैंने पूछा कि हरिजी आपने ऐसा कोई गाना है कि ऐसा कोई जॉनरा जो कि आपने नहीं गाया. So he said यार मैंने कव्वाली नहीं किया. So we said okay, let's do a kawali. Then Hariji of course is known to do all kinds of wonderful avant-garde kind of work with blues as well. So हमने सोचा कि एक blues का गाना करते. तो जो मन में आया, अपने जहन में आया, जो मजा आया कि चलो इसको करते हैं, we started doing those and then the album just shaped up beautifully. 5 songs of 5 different genres and that's why it's called Man Marzi. We both felt that this is a pretty funky name to have because it's actually that मन में जो आया वही किया हमने. राइट. सो म्यूजिक की मन मर्जी है दो मैस्ट्रोस की तरफ से. हरि जी, जैसे अभी विक्रम जी कह रहे थे ना, आपसे उन्होंने पूछा कि इज देयर अ जॉनरा जो आपने नहीं गाया, एंड आई वाज थिंकिंग रियली इज देयर. तो किस तरह के सॉन्ग्स का कोलैबोरेशन हुआ है? व्हाट काइंड ऑफ जॉनरास? ऑफ कोर्स कव्वाली जैसे उन्होंने बताया. व्हाट एल्स विल वी ट्यून आवर हार्ट्स एंड माइंड्स टू? एक स्पेशलिटी है विक्रम जी के जो कॉम्पोजिशंस हैं, उसमें एक इट्स वेरी सोलफुल और एक सादगी है. इट्स वेरी म्यूजिकल. जो भी है लयदार है और छूता हुआ, दिल को छूता हुआ ये गाने हैं. और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे मेहनत ही नहीं लगता आपके गाने में, क्योंकि आई थिंक इट इज मेड फॉर मी. मैं बोलता हूँ कि इतना अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा लगता, ऐसा लगता है कि मैं मुझे गाना है ये गाने, और हंसते हंसते मतलब मजा करते करते गाना हो जाता है. हाँ, हालांकि दिस इज सेकंड एल्बम वी आर डूइंग टुगेदर एंड बड़ा मजा आया. और इसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन भी है सलीके से है, मतलब नॉट हैवी बिकॉज टू मेक इट हैवी या ओवर अरेंज, नथिंग. जो चाहिए एक गाना जो है, जैसे कहते हैं ना गजल जो है एक हसीन तरी परी है, तो उसके अरेंजमेंट्स ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि उनके ऑर्नामेंटेशंस हो, नथनी है, फिर कुछ एक माला है, ऐसे नहीं कि पूरा एकदम हावी हो जाए उन पर. वो घबरा जाएगी. तो ये सेंसिटिविटी मुझे एक दूसरे में हमको नजर आता है, तो बड़ा मजा आता है. Thank you so much for obliging and singing and thank you so much. And once again, as I said, I am really really honored कि आज आप दोनों के साथ इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला. And I hope ऐसे मौके मुझे बहुत सारे मिलते रहे. And I really really thank both of you from the bottom of my heart. Thank you so much. हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी बीट. और आज मैं ऐसे दो फनकारों के साथ हूं जिनके साथ इंटरव्यू करना मेरे लिए गर्व की बात है. वी हैव विक्रम घोष जी एंड पद्मश्री हरिहरन जी. नमस्कार. थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए. सबसे पहले थैंक यू सो मच. काफ़ी वक्त से आपके फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि ये दोनों साथ में कब आएँ और एक अलग सा एक अच्छा म्यूज़िक लोगों को मिले. तो कितनी मेहनत गई फिर से दोबारा साथ में लौटने में? काफ़ी मेहनत जाती है हर बार, ये तो है ही है. सो क्या होता है ना कि मैं गाना बनाता हूँ, हरिजी को भेजता हूँ, हरिजी सोक इन करते हैं गाने को, फिर हरिजी गाते हैं, और जब हरिजी गा के वापस भेजते हैं फिर मुझे लगता है कि फिर से सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अरेंजमेंट फिर से चेंज करना होता है. बिकॉज ही इज़ सच अ जीनियस दैट ही विल सिंग द सॉन्ग इन अ वे दैट इट विल गिव मी फ्रेश आइडियाज़. So फिर दोबारा चालू होता है प्रोजेक्ट. So there are full 2 rounds of working in the project which happens. So a lot of hard work, a lot of sincerity goes into it, and we are perfectionists. कभी ऐसा नहीं करते हैं कि छोड़ देते हैं, चलो अच्छा है छोड़ देते हैं, तो वो किटकिट होते रहता है. कभी नहीं होता है वो. जब तक वी आर एट ईज तब तक चलता ही रहता है वो. लेकिन ये जो मन मर्जी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज आपका जो पहले आप लोग साथ में आए थे वो इतना पसंद किया गया, और
इनिशियल पॉइंट अगर आप शुरुआत बताता हूँ ये बंदे का एनर्जी जो है विक्रम जी का। तो हमने इश्क किया, फर्स्ट एल्बम इट इज़ कॉल्ड इश्क एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो वी हैड अ सक्सेस पार्टी इन कैलकाटा। तो द नेक्स्ट डे आई वाज स्टेइंग देयर, तो इन्होंने बुलाया मुझे, अरे हरी भाई चलो ना कुछ सुनते हैं म्यूज़िक जी, कुछ क्या नया किया हूँ। और तभी ये 5 गाने मुझे सुनाए। वो स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैं बोला यार अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ये क्या कर रहे हो तुम? पूरा करना है। अच्छा तो करो। तो आप गाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड विश यू ऑल द लक फॉर दिस म्यूजिक। Thank you so much. थैंक यू। Firstly, welcome to the channel. Thank you. ये जानना चाहेंगे मन मर्जी सुनते ही ऐसा लगता है क्या कुछ इसके पीछे छुपा है, और आपके ख्याल में कैसा है इस मन मर्जी के बारे में? बस हम 2 ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो एक उसमें म्यूज़िक है। तो हमने सोचा कि इस बार हम जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में चले, म्यूज़िकली चले और कुछ अच्छे गाने रिकॉर्ड करें। Notwithstanding what genre it is, what trend is happening, we had nothing to do with it. We wanted to get 5 soulful songs. He composed it, I sang it. What is something different are we going to see in this? क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है जो गाने की लिरिक्स की आवाज़ है, बहुत ही कम आजकल म्यूजिक में सभी चीज़ें सुनने मिलती हैं। किस तरीके से आपने पूरा शूट किया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 अलग चीज़ें। देखिए, एक तो अभी जो टाइम है अभी, इस टाइम में आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो परसेप्शन के हैं कि इस तरह का काम चलता है, इस तरह का साउंड लोग सुन रहे हैं, ये पॉपुलर है। बट एक्चुअली जो है म्यूज़िक हर ज़माने में तरह तरह का म्यूज़िक को एग्जिस्ट किया है। आप सोचिए, जिस ज़माने में हम बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्म्स देखते थे, 60s मानिए, 50s, 60s, 70s, उसी ज़माने में पंडित रविशंकर उधर is doing such great work internationally with classical music. फिर Purnadas Baul is doing international work in the same period. I think जो हमारा जो मन की इच्छा थी कि ऐसा काम करे जो एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है ना, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है जो कि इस टाइम के लिए सही है, और एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है जो कि एनी टाइम 50 years later भी आप सुने तो आपको मज़ा लगेगा। सो उसी हिसाब से ये बना है। एंड इसमें आप बहुत लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन आपको सुनने को मिलेगा। जॉनर्स अलग है, कभी कवाली है तो कभी ब्लूज़ है, तो कभी सूफी गाना है, और जिस गाने के जिक्र आप कर रहे हैं दरिया, वो दैट इज़ अ सूफियाना सॉन्ग, नॉट टिपिकल। मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर गा रहा हूँ मैं। हाँ, वो ये कौन हर गाने में पुकार नहीं होता है सूफी का। सूफी से फिलॉसफी, सूफीज़म से फिलॉसफी। तो आप बड़े प्यार से सॉफ्टली कैन सिंग अ सूफी सॉन्ग, और उसका लिरिक्स इम्पोर्टेंट है। जैसे इस गाने में क्या है, द फर्स्ट लाइन इज दरिया के जल में बादल के टुकड़े। सो ये थॉट जो है, दिस लीड्स द सॉन्ग इनटू वेरियस प्लेसेस। तो मतलब दरिया नीचे है, आसमान ऊपर है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो दिस इज अ सूफियाना थॉट कि सब कुछ सेम है, सब कुछ एक है, जॉइंट है किसी न किसी तरह, इंसान जैसे जॉइंट रहता है। It is infinite, but it joins. Yeah. So there's a lot in the album. There's a lot of depth in it. Yet it is easy listening. Yet it is simple. आपको सुनने के बाद आपको गुनगुनाना मजा आएगा. But आप थोड़ा सा अगर घुसना पसंद करते हैं गाने के अंदर,
तो वहाँ भी आपको बहुत ट्रेजर मिलेगा कि वो साउंड का ट्रेजर है, लिरिक्स का ट्रेजर है, गायकी का ट्रेजर है, बहुत कुछ है इसमें। सुनते ही मैं तो मगन हो गई, लेकिन साथ ही वो ऑडियंस भी आज आपको देख रही है, उन सभी से आप क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार करती है हर एक नए गाने का? जी, हम दोनों मिलकर एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं आपके लिए जिसका नाम है मन मर्जी। और हमें अच्छा लग रहा है सारे गाने, और आप ज़रूर सुनिएगा। Hi everybody, this is Hari Haran and you're watching Awesome TV. Hi friends, this is Bikram Ghosh and you're watching Awesome TV. चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ बैठेंगे बातें करेंगे। My उस्ताद जी used to say, बेटा कभी भी शागिर्द रहो, उस्ताद बन जाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। वर्शन सिंगिंग एंड ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब एक तो पहले तो रिकॉर्ड करते थे, अभी आप अच्छे भले सिंगर्स, वेरी गुड सिंगर्स, दे आर ऑल सिंगिंग वर्शंस। वी आर द रेयर collaborators who have done 2 albums in 3 years. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज का इंटरव्यू बहुत खास है क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही दिग्गज सिंगर यहाँ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ म्यूजिशियन एंड म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले तो पद्मश्री विनर एंड उसके साथ साथ नेशनल अवार्ड विनर। सबसे पहले तो हरिहरन जी, मैं कहना चाहूँगी दैट बिग फ़ैन, वेरी बिग फ़ैन। मुझे आपके सारे गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगा हवा कहाँ से आ रहा है। नहीं सच्ची। और साथ ही साथ वैलेंटाइंस डे है, प्रेम का मौका है, और अगर हम इस इंटरव्यू में, मौका भी है दस्तूर भी, अगर हम इस इंटरव्यू में एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ शुरुआत करें, जो आपका गाना है चंदा रे, तो बहुत अच्छा है। चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ बैठेंगे बातें करेंगे, तुझको आते ना राहो ना ला रा 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 रा। 4 चांद लगा दिया आपने, चंदा रे और 4 चांद लगा दिए। विक्रम घोष जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी दैट आपकी भी कला बेहद बेहतरीन है और आप दोनों का एक नया एल्बम आ रहा है मन मर्जी, जिसके बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले, हाउ डिड यू गेट दिस ऑन बोर्ड? See, Hariji and I had done 2 years back the album called इश्क, और वो बड़ा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। और इश्क के सक्सेस पार्टी के बाद मैंने हरी जी को आई इनवाइटेड हिम टू माय स्टूडियो इन कैलकाटा एंड ही केम। वहाँ पे उनको मैंने 5 गाने सुना दिए और ही सेड बड़ा अच्छा है, लेकिन मतलब हु इज सिंगिंग? आई सेड हरी जी आप ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है। सो राइट after we started working, and this time around I was more focused on utilizing Hariji's versatility and his range. तो मन मर्जी जो नया प्रोजेक्ट है, इसमें हरिजी is heard singing from Qawwali to blues to Sufi to Geet, all kinds of songs. So ये I think this is a more versatile album. Ishq was a soft geet driven album. तो अभी ये प्रोजेक्ट बनता गया और बनता गया, इसलिए इसका नाम हो गया मन मर्जी। We said let's just call it, what is the name of the album? We do what we feel. मन मर्जी, वी डू व्हाट वी फील। क्या बात है। जैसे कि आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, आपने कॉन्सर्ट से लेके ऑर्केस्ट्रा, भजन और हर तरह के गाने गाए हैं बॉलीवुड। तो कोई ऐसा संगीत है जो आपको अभी भी गाना है या कुछ भी ऐसा? पता नहीं, आई एम ऑलवेज ऑन द लुक आउट कि कुछ ऐसा हो कि सीख सकूं और गा सकूं, अलग लगूं मैं उस गाने में। Better to be a learner than a teacher, I think, lifelong. मतलब माई उस्ताद जी used to say,
हम उसको बोलो बेटा कभी भी शागिर्द रहो, उस्ताद बन जाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे. Something to that effect, you know, he told me. It was amazing. एक सिंगर और एक म्यूजिशियन का बॉन्ड, एक गाना तभी हिट होता है जब इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो, और आपका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखकर आ रहा है गाने में भी. तो आपके बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बॉन्ड काफ़ी उसका अभी I know where वैल्यू this is अच्छा है. going. I know where this is going. मैं क्या कह रहा हूँ कि we met as musicians, then we started working, we started doing programs once in a way, and अभी ऐसा है कि एक एल्बम किया तो ट्यूनिंग हो गई, तो ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, and we are very similar in a lot of things, so that helps to work. And we like each other's company also. We keep talking, you know, anything under the moon. Yeah. And तो एक मज़ा आता है, भाईचारा है. And I think it's lovely to keep doing this. बिल्कुल. तो for me, see, एक तो my relationship, in my own head, my relationship with Hari ji stems from a very deep sense of respect first and foremost. That's there. वो जितना भी हम हंसी मजाक कर ले, जो भी कर ले, वो नहीं जाएगा. That is बरकरार. That is the whole the keyhole with which I'm viewing him, you know. But when you get to know him, he's so charming, he's so sweet, he's just so affectionate and all of that. कि for me the respect goes up even more. If it was कि हाँ ये फनकार इस लेवल के हैं, इस ग्रेट आर्टिस्ट हैं, यहाँ तक सीमित है. बट इंसान जब दिख जाए कि ये इंसान भी इतना बेहतरीन है, then you feel even more respect. So I really think of him as an older brother who shows the path, you know, कि ऐसा चलना चाहिए जिंदगी में. आंखें नम हो जाती है जब भारत के लिए हम गाना गाते हैं, जैसे कि आपकी आंखों में मैं देख सकती हूँ वो नमी, और मेरे भी आंखों में आ गई थी. तो सारे जवान जिन्होंने अपनी जान दी थी, उन सबको श्रद्धांजलि. नमस्कार, मैं अंकुर शर्मा आप सभी का वन इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ. आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सुरों के दो फनकार, दो जादूगर से. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरिहरन सर की और विक्रम घोष की, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन दिनों अपने नए गाने को लेकर चर्चा में हैं. सर, हरि सर एंड विक्रम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में. थैंक यू. नमस्कार. Thank you. नमस्कार. सबसे पहली बात तो आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे. हाँ, आपको भी और सारे आपके दर्शक को भी. सर, आप दोनों लोग कमाल करते हैं. पिछली बार आपने बोला इश्क हवाई है, इस बार आप बोल रहे हैं मनमर्जी. आखिर ये किसकी मर्जी है, रब की, सुरों की या आपकी? हरि जी. दो दीवाने लोगों की मनमर्जी है. जब दो वो भी दीवाने सही है. मिलते हमारे हैं, मन जब दो दीवाने मिलते हैं तो कुछ नया कर जाते हैं. इस बार ये दीवाने क्या लेके जी. आए हैं? हम लेके आए हैं 5 खूबसूरत गाने जी. जो हर रंग में, अलग अलग रंग में है. 5 गाने, और इसमें रोमांस है, ब्लूज है, कव्वाली है, गीतनुमा गजल है. जी. और ये विक्रम जी ने कमाल कर दिया इन कॉम्पोजिशंस में, और उनके जो अरेंजमेंट है वो उस एक कहूंगा कि ये बड़ी सादगी है, और तीर जो है सीधे आपके दिल पे घुस जाएगा. ये मुझे लग रहा है कि इट्स स्ट्रेट अ सोल टॉक. विक्रम जी. थैंक यू. हरि जी, थैंक यू. हरि जी के साथ जब हम काम करते हैं, एक अजीब सा प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस से कभी कभी जो ओरिजिनल हमारा आइडिया होता है वो कहीं और चला जाता है. उसीलिए इस एल्बम का नाम है मनमर्जी, क्योंकि ये मर्जी जैसे घूमते रहता है, हमारा प्रोजेक्ट भी घूमते घूमते जाता है. So we started with the thought that we will do another album
शायद इट विल बी अ सिमिलर काइंड ऑफ एल्बम। लेकिन जब हमने काम चालू किया तो फिर लगा कि नहीं, काफी और वेरिएशन आ गया इसमें। एंड हरि जी ने मुझे एक बार बताया कि मैंने हरि जी से पूछा कि हरि जी, आप ऐसा कोई गाना है, ऐसे टाइप कोई टाइप का गाना है जो आपने नहीं गाया या कम गाया है? तो ही सेड कवाली। So the song that is releasing today is the first song of the album, which is called कवाली। और वो कवाली का जो जॉनरा है वो बड़ा कम हो गया है आजकल। तो वो जो और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी वो जो माहौल होता था, ये सारे लाइव ढोलक बजते हैं, फिर उसके साथ हारमोनियम बजता है, फिर बुलबुल तरंग, तो हमने सब वापस लाया कि वी हैव अ बुलबुल तरंग प्लेइंग, हारमोनियम प्लेइंग, ढोलक प्लेइंग। तो बड़ा मजा है इस गाने में। एंड हर जी इज एब्सोल्युटली संग इट लाइक अ ड्रीम। वो तो सारे गाने लाइक अ ड्रीम ही गाते हैं, लेकिन इस गाने में ही इज शोन कि हाउ अ कवाली कैन, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कवालीज। दिस इज अ रोमांटिक कवाली, दैट्स व्हाई वी आर रिलीजिंग जी इट ऑन वैलेंटाइंस डे। और इसमें एक रोमांस भी है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पायल हरगोड़े। ईटीवी भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है पद्मश्री हरिहरन जी और तबला माएस्ट्रो विक्रम घोष। वैलेंटाइन डे के अवसर पर मनमर्जी एल्बम रिलीज होने वाला है, उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जानते हैं इस एल्बम के बारे में। तो हरिहरन जी और विक्रम जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। हम मनमर्जी ये एल्बम है, 5 उसमें गाने हैं। कव्वाली एक स्टाइल, एक गाना जो है कव्वाली स्टाइल में है, एक गजल में है, एक गीत में है, एक ब्लूज में है। तो हर हर अलग अलग कंपोज हुआ है। विक्रम जी ने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है। और इसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में विक्रम जी आपको बताएंगे। जी जी। हमारा पहला गाना जो है कवाली, वो रिलीज हो रहा है with a video also, of course. Hariji had said he had not sung a kawali, तो इसलिए उनके लिए कवाली हमने कंपोज किया। और he has done such a brilliant job like only Hariji can. All the songs are very fresh compositions, and they have very interesting instrumentation also. And of course, Hariji's voice is the char chand on all the songs. And this is our second album together. The first was Ishq, 2020, late 2020, and now Manmarzi is going to be out. We're very, very excited, and the feedback has been fantastic. People are really loving the songs. जिन्होंने privately सुना है, और अब कल से तो सब public platform पे सुन पाएंगे. So it's very happy for us. जी जी जी। हरिहरन जी, इस वैलेंटाइन डे के अवसर पे हम कोई रोमांटिक गाना सुनना चाहते हैं। रोमांटिक? यस। रोमांटिक तो अब बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के ये के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियां। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। यस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।